Hello, students. So, we are meeting in the next session of your book Word Parme ADC. So far, we have done 10 sessions. Hope you have revised all of them and learned a few words and how to really crack words. Also, you must have understood by doing some root words and all. And I assure you, if you have done these 10 sessions earlier, that from session 1 to session 10, another 10 sessions are going to give you tons of knowledge again, because the reason now you have the plinth of the knowledge, that how you really extend your knowledge horizon. So now we have to start with the knowledge of the first 10 sessions. If anyone who hasn't done the first 10 sessions, he can go back to my videos and then watch all of them. It will help you immensely for sure. Any student, I say, it is a must watch uh, videos, because the reason that when I watch people doing CAT or SAT or NMAT or banking or SSC and everything, and even 9th 10th class students also are now, when I teach them, I always tell a 9th student, 10th student, 12th student, they are reading this book, because this is ultimately the basic book. I say this is not nothing like a religious book, I say, but this is the basic book which develops your interest to learning words. Okay, so hope you will do that, and then I will post your test of session 1 to session 10 very soon, and then you can also see how much have you grabbed as far as the vocabulary is concerned. Let's begin with session 11. What it is talking about? It is talking about a few more words relating the kind of professionals we have. Though we know many, but during the course of learning, what do? We are learning many words as well. Sometimes people may say, यार ये तो मुझे आता ही है. Agreed है, आपको आता है. I'm not saying, but you have to be receptive when you have to learn. Okay, then receptive means you just try to receive a little more. Keep your hands open to receive as much as possible. Keep your mind free कि हाँ मुझे आता तो है, लेकिन मैं तो हमेशा यही मानता हूँ कि I'm a 6th class student, मुझे नहीं आता. तो let's learn that way. Spend 15-20 minutes, whatever session it takes. A true scientist lives up to the etymological meaning of his title, one who knows. When we say gynecologist, so we say gynecologist title, what says? Okay, related to the gynae, we say. Pediatrist, relating to the pedos. You know the words we have done like this. Cardiologist, relating to the word cardia, if you recall. So this will tell you, one who knows. Anything specific is based on facts, observable facts that can be recorded, tested, checked, and verified. Can be seen, these kind of facts. Now, science then deals with human knowledge as far as it has gone. Human knowledge, okay, वही है जो हमारे नॉलेज है, उसी से हमने साइंस डेवलप करी है. साइंस कहीं बाहर से नहीं आई, वो मेरी नॉलेज का ही एक्सटेंशन है. इट हैज गॉन वेरी फार इंडीड सिंस द लास्ट सेंचुरी और टू. when we stopped basing our thinking on guesses. पहले हम क्या मानते थे कि स्टार्स का ये होता है, वो होता है, फिर हमने कहा जी क्या नाम है, व्हाट डू यू कॉल एक्लिप्सिस कैसे आते हैं, ये हमारे सारे गेस थे. तो when we stopped basing our thinking on guesses, wishes, theories that had no foundation in reality, उनका बेसिकली हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट पर कंफर्म्ड नहीं था. हो सकता है वो भी सही हो, ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन हाँ हमारे पास कुछ कंफर्मेशन नहीं थी, रियलिटी नहीं थी. एंड कॉन्सेप्ट्स हाउ द वर्ल्ड ऑट टू बी, ये भी नहीं पता था कि दुनिया को कैसा होना चाहिए. ऑट टू का मतलब होता है कैसा होना चाहिए. एंड इंस्टेड बिगैन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एज इट वॉज, जैसा था ऐसा क्यों था, हमने ये जानने की कोशिश की. एंड नॉट ओनली द वर्ल्ड बट द होल यूनिवर्स. हम ये जानते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और जो आपकी एंग्जाइटी है वो आपकी लर्निंग बन जाती है. From Galileo, who looked through the first telescope atop a tower in Pisa, Italy, Pasteur, who watched microbes through a microscope. Microbes अगर हम नीचे देखो तो लिखा हुआ है a microorganism, especially a bacterium causing disease or fermentation. अगर आप जानते हैं आप कर्ड जब बनाते हो तो फर्मेंटेशन कर रहे होते हो, लीवनिंग जिसे बोलते हैं. ठीक है. सिमिलरली कोविड 19 क्या है, उसी में बैक्टीरिया का ही इजाद है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो हु वॉच्ड माइक्रोब्स थ्रू ए माइक्रोस्कोप, टू आइंस्टाइन हु डिसिफर्ड रिडल्स ऑफ द यूनिवर्स बाय मींस ऑफ मैथमेटिक्स, वी हैव एट लास्ट बिगन टू फिल इन अ फ्यू एरियाज ऑफ इग्नोरेंस. ए फ्यू एरियाज ऑफ इग्नोरेंस, धीरे धीरे हमें थोड़ा थोड़ा सा जो हमारी इग्नोरेंस थी उसके बारे में पता चलने लगा
कि ब्लैक होल क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कैसे मूवमेंट होगी, ये सब हमने कैसे सीखा। कुछ गैलीलियो ने काम किया, कुछ आइंस्टाइन ने किया, कुछ न्यूटन ने किया, तो वहां से हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगा। डिसिफर करने का मतलब होता है डिकोड करना, convert from code into normal language, decode it is written there. A riddle तो everyone knows, puzzle होता है, enigma जिसे कहते हैं, mystery होती है, quandary is also another word if you talk of is the riddle. Okay, now what it says, आपने word पढ़ लिया, आपको लगेगा इसमें कि अगले पेज पे चलता हूँ, आप जाइए अगले पेज पर, लेकिन क्या आप थोड़ी मन से पूछ के देखिए, क्या डिसिफर और सिफर वर्ड का मीनिंग आपको मालूम था? रिडल के सिनोनिम मुझे मालूम थे कि एनिग्मा होता है, क्वेंड्री होता है, बस यही सीख लेना है एक स्लाइड के ऊपर। ओके, दैट्स इट। यू आर इंटेलिजेंट आई से, बट एवरीबडी हैज अ स्कोप टू लर्न, सेम इज विद यू। ओके, तो आपने एनिग्मा सीखा, आई सपोज क्वेंड्री सीखा, और आपने सीखा कि डिसिफर और सिफर किसे कहते हैं। ओके, दैट्स केस, आगे चलते हैं। Who are some of more important explorers of knowledge and by what term are they known? कुछ और भी तो लोग होंगे आइंस्टाइन और इसके अलावा जो प्रोब करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में काम करते हैं। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एंड बाय व्हाट टर्म्स आर दे नोन। क्या होता है उनका नाम, देखते। सिंपल वंस, वेरी फ्यू। विदर मैनकाइंड, विदर का मतलब होता है टू व्हाट प्लेस, विदर का मतलब होता है टू व्हाट प्लेस, और एक वर्ड होता है वेंस, from what place. He did not know whither he was going, whence he came from. ये याद रखिए, whither और whither होता है। अगर आप देखोगे तो शायद मैंने लिखा है whither का, anyway I'll go back to this, I'll write it for you. मैंने से the word like, आपका भी आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन whither है जो मैंने अभी आपको बताया, तो एक वर्ड whither भी तो है, तो एक वर्ड आप रोज सुबह शाम पढ़ते हो वेदर भी होता है, और एक वर्ड आपका वेदर भी होता है। तो ये तो वेदर आपका क्लाइमेट का छोटा भाई हो गया, से लाइक दैट। क्लाइमेट ओवरऑल होता है पूरे टेन्योर का, 1 ईयर का, ये जनरल वाला, और वेदर डे टू डे वेरी करता है। और ये वेदर का मतलब इफ और वेदर होता है, ठीक है। ये वेदर मैंने बोल दिया टू व्हाट प्लेस होता है, यू नो। एंड देन विदर इज, दिस इज जस्ट टू लाइक, जिसे कहते हैं मुरझा जाना होता है, विदर होता है डल हो जाता है, डिकेड हो जाता है, वी कैन से लाइक दैट, ये विदर होता है, ठीक है, विदर हो जाता है। फ्लावर्स नॉर्मली विदर कर जाते हैं, कभी आपने वर्ड पढ़ा हो तो एक वर्ड होता है विल्ट करना होता है। दीज आर दी वर्ड्स दैट दे आर वेरी नियर बाय, विदर विदर, आप याद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि विदर क्या है, WH वाला है, और विदर मतलब ओल्ड पर्सन विदर्स अवे हो जाता है, फ्लावर्स विदर हो जाते हैं। वेदर और वेदर तो आपको आता ही था। ओके, चलिए। The field is all mankind. This field is all mankind. How we developed in mind and body for primitive cultures and early forms. Primitive मैंने लिखा है earliest times in history of the stages in evolution और development होता है। Primitive stage होती है when we were growing from monkeys to latest day human. That is the, वो पहले वाला जो stage था primitive culture हो जाता है। देन ऐसे लोग पर्सन को आप बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाता है। यानी अब लोग बार बार हमने एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है जो स्टडी ऑफ मैनकाइंड करता है, लेकिन याद रखिए स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड सोशल कल्चर्स होता है। दैट इज व्हाट वी से इज सोशल, ह्यूमन कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी सोसाइटी की स्टडी करता है ये ह्यूमन होता है, यानी ह्यूमन की डेवलपमेंट कैसे हुई धीरे 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 धीरे, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। इट इज नॉट ओनली द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। Okay, mankind means how the man developed from that particular stage to date. That's what we need to understand. He is anthropologist होता है। तो kindly don't limit yourself to ये study of mankind होता है, study of societies हो जाता है। Okay, then what is above? Above मतलब the field is the heavens and all that is in them, planets, galaxies, stars and other universe. You know it well. हमारे सर के ऊपर जो sky है, तो sky के ऊपर क्या है? साइंस हैज एक्सप्लोर्ड। पहले तो हम कहते थे भाई ये है वो है, लेकिन अब धीरे धीरे हमें समझ आता है कि भैया ये प्लैनेट्स होते हैं, ये कोई ऐसे, हमने उनको ये पहले मानना था कि ये डेविल हैं या गॉड हैं या कुछ है। धीरे धीरे साइंस इज एक्सप्लोरिंग कि भाई मार्स अलग प्लैनेट है और या मून अलग चीज है, ठीक है। तो मैथोलॉजी से शुरू हुए, लेकिन धीरे धीरे साइंस को यूज करने लगे। And then this kind of fellow is known as astronomer होता है। We'll talk about this astronomer, word aster से आया है। Aster means what, we nomos मतलब what, we will talk about this in the coming sessions.
एस्ट्रोनॉमर होता है। एंड व्हाट इज बिलो, आपके जमीन के नीचे क्या है, आपके पाँव के नीचे क्या है। दिस द फील्ड इज द कंप्लीटली लिटिल एंड इनसिग्निफिकेंट whirling बॉल is comparatively the field is the comparatively little and insignificant whirling ball। whirl होता है इस तरीके से, वर्ल्ड पूल कभी आपने सुना हो, यानी जैसे भंवर कहते हैं हिंदी में, वाटर का सर्कुलर मोशन लाइक दिस ओनली, दिस इज वर्ल्ड है। आवर अर्थ इज मूविंग लाइक दिस ओनली ना, but he says comparatively little and insignificant ball on which we live। Why it say insignificant? Because the reason, if you talk of the galaxies and all the universe, we say हम उसमें एक डॉट से भी छोटे हैं, तो इसलिए बोल रहा है द फील्ड इज द कंपैरेटिवली लिटिल एंड इनसिग्निफिकेंट whirling ball on which we live, the earth। how did our planet come into being? हमारा जो planet है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया, that's what we need to understand। ठीक है, how did our planet come into being, what is it made of, किस चीज का ये अर्थ बना हुआ है, how were its mountains, oceans, rivers, plains and valleys formed, and what is down deep if you start digging। कभी साइंस में कभी हमने पढ़ा था कि भी ऐसा बताइए कि अर्थ को एक एंड से लेके नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अगर मान लीजिए होल कर दें तो कितना कंटेंट निकलेगा, क्या करेगा, कभी आपने सोचा ऐसा पॉसिबल है? साइंस तो सोच रही है। ठीक है, तो अगर हम नॉर्थ पोल से अगर डिगिंग करना शुरू करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। दिस इज व्हाट दी साइंस इज। अगर इस तरीके के पर्सन की बात करेंगे तो वो जियोलॉजिस्ट हो जाएगा, वो जियोलॉजिस्ट हो जाएगा। एक ज्योग्राफी होती है वो अर्थ के ऊपर वाली होती है, जियोलॉजिस्ट होता है वो उसके अर्थ के नीचे वाला होता है। ध्यान रखिए, ज्योग्राफी भी आप पढ़ते हैं, जियोलॉजिस्ट भी, जियोलॉजी भी होती है। जियोलॉजी इज बिलो द अर्थ, यानी द वन हु स्टडीज ऑल दिस इज जियोलॉजिस्ट हो जाता है। नाउ से इनसिग्निफिकेंट के लिए वर्ड देखिए, एक वर्ड होता है ट्रिफल, ट्राइवियल हो जाता है ना, ट्रिफल होता है, ट्राइवियल होता है। वर्ल तो मैंने आपको बता दिया, मूव और कॉज टू मूव रैपिडली राउंड एंड राउंड। जैसे आपका जो लट्टू होता था, टॉप होता था, जैसे वो मूव करता है वैसे अर्थ भी मूव कर रही है। कम इन टू बींग मीन्स एग्जिस्ट होता है, टू बिगिन होता है, टू एग्जिस्ट हो जाता है। आप केम इन टू बींग मतलब कब से शुरू हुआ, दैट्स व्हाट द केस है। प्लेन्स तो यू नो, प्लेन्स होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन है, ये वाली बात आती है। प्लेन मतलब वो फ्लैट स्वीपिंग लैंड मास को बोलते हैं। वो गंगा प्लेन्स हैं, अगर आप देखें नॉर्थ में जो फर्टाइल हैं तो वो प्लेन की बात करता है। ओके, अब ये PLAIN प्लेन भी पता है और PLANE पता है, वो भी प्लेन आपको मालूम है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, चलते हैं आगे। देन व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज लाइफ का मतलब क्या? द फील्ड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप सब ने पढ़ा है बायोलॉजी, थोड़ा बहुत आपने बचपन में 9-10 में हमने पढ़ाया था आपको कि हम किसके बने हैं। बिल्कुल, हम सब सेल्स से बने। द फील्ड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन कॉल्ड अमीबा टू द अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टिफाइंग स्ट्रक्चर वी कॉल ए ह्यूमन बीइंग। भी सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग है, हम ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो सब लोग किस चीज से बने हैं? द फील्ड, जो इस फील्ड में काम करता है, द फील्ड इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डील करता है। फ्रॉम द सिंपलेस्ट वन सेल्ड अमीबा टू द अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड मिस्टिफाइंग स्ट्रक्चर। मिस्टिफाइंग मतलब जो मिस्टीरियस हो, ऑब्सक्योर हो। ऑब्सक्योर मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, मिस्टिफाइंग हो जाती है। ठीक है, गॉड, हेवंस, ये सब क्या है? मिस्टिफाइंग है। कभी कभी कोई थ्योरी मिस्टिफाई होती है, आप समझ नहीं पाते, आप कहते हैं यार दिस इज रियली मिस्टिफाइंग, दैट वे वी से मिस्टीरियस। सो एंड मिस्टिफाइंग स्ट्रक्चर वी कॉल ए ह्यूमन बीइंग। हम अभी तक इंसान को नहीं पता कि वो कैसे डेवलप होता है, कैसे बिल्कुल एक जनरल फ्रॉम ए किड टू दी एल्डरली हम कैसे ग्रो हो जाते हैं और कैसे फिर डाई करते हैं। अभी साइंस इज रियली अनश्योर अबाउट द होल थिंग। प्लांट और एनिमल, फ्लैश और वेजिटेबल, डेनिजन ऑफ वाटर। डेनिजन अगर आप देखें तो ड्वेलर्स होते हैं, रेजिडेंट होते हैं, इनहेबिटेंट होते हैं। आई एम ए डेनिजन ऑफ दिल्ली, से लाइक दैट। आप डेनिजन हो गए, ड्वेलर्स हो गए। ठीक है, झुग्गी ड्वेलर्स हम कई बार यूज करते हैं, न्यूज़पेपर में कभी आपने पढ़ा हो तो, वो उसमें रहने वाले। तो क्या हुआ? प्लांट और एनिमल, फ्लैश और वेजिटेबल, डेनिजन्स ऑफ वाटर, अर्थ और एयर। इफ इट लिव्स एंड ग्रोज, दिस साइंटिस्ट वांट्स टू नो मोर अबाउट इट, कि ये क्रीचर कैसे बढ़ते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता। जो इन सब के बारे में सोचेगा, पढ़ेगा, वो क्या है? वो बायोलॉजिस्ट हो जाता है। यू नो, बायोलॉजी, बायोस इज बेसिकली विद लाइफ है। ओके, विल टॉक अबाउट दिस लेटर। कहाँ से आया?
एंड देन फ्लोरा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड फ्लोरा एंड फौना, यू नो दैट। तो उसका एक पार्ट करें फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स फ्लावर हो गया। तो बायोलॉजी क्लासिफाइज लाइफ इनटू टू ग्रेट डिविजन्स, प्लांट एंड एनिमल। दिस साइंटिस्ट प्रोविंस मतलब एरिया ऑफ वर्क हो जाता है, प्रोविंस होता है। दिस साइंटिस्ट प्रोविंस इज द फॉर्मर कैटेगरी मीन्स फ्लावर्स, ट्रीज, shrubs, mosses, marine vegetation, blossoms, fruits, seeds, grasses and all the rest that make up the plant kingdom. मॉसेस समझते हो ना, काई होती है। मैरीन वेजिटेशन, जो जो मैरीन तो ओशियन वाटर के नीचे जो मिलेगी वो वेजिटेशन, ब्लॉसम्स, फ्लावर्स, वो काइंड ऑफ थिंग, फ्रूट्स, सीड्स, ग्रासेस एंड ऑल द रेस्ट दैट मेक अप द प्लांट किंगडम। वो जो इस सब के बारे में स्टडी करेगा वो क्या होगा, बोटेनिस्ट हो जाता है। ठीक है, तो बोटनी में लोग मैंने देखा है मास्टर्स कर रहे होते हैं, तो वो जो बोटनी में स्टडी करेगा वो बोटेनिस्ट होगा। यानी ही डील्स विद ऑल दी प्लांटेशन वेजिटेशन, सॉरी, ही डील्स विद ऑल दी वेजिटेशन में सभी चीजें आ जाती हैं। तो यानी जो लाइफ क्रीचर की स्टडी करेगा कि हम कैसे डेवलप हुए, किस सेल से बने हैं, वो बायोलॉजिस्ट हो गया। और जो फ्लावर वगैरह की वेजिटेशन की स्टडी करेगा वो बोटनिस्ट होगा। आपको पता है, आप प्रॉब्ली कुछ लोग सोचते हैं यार ये तो पता ही है, इसका क्या देखना। ठीक है, आपको पता है, लेकिन डेनिजन का मीनिंग आपको मालूम था क्लियरली, या आपको मालूम था कि मिस्टिफाई कैसे यूज कर सकते हैं? दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए। एंड फौना, मैंने भी बात की थी, फ्लोरा एंड फौना। फौना क्या है? एनिमल्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, kind and condition, from birds, bees, fish to fowl, reptiles to humans, are the special area of exploration of this scientist. इस साइंटिस्ट को हम बोलते हैं क्या? जोलॉजिस्ट आ जाएगा। इसको जूलॉजिस्ट नहीं पढ़ना, जोलॉजिस्ट पढ़ना है। ठीक है, वो जियोलॉजिस्ट है, ये जोलॉजिस्ट है। ओके, जूलॉजिस्ट नहीं पढ़िए। नाउ व्हाट इज ए फोल? क्या है? चिकन का जो छोटा बेबी होता है उसे फोल बोलते हैं, डोमेस्टिकेटेड बर्ड। एंड एक्सप्लोर करना तो आप जानते हैं, यू ट्राइंग टू एक्सप्लोर दी पर्टिकुलर इशू, आप ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर वैसे भी बोल रहा है, ट्रेवल थ्रू एन अनफेमिलियर एरिया इन ऑर्डर टू लर्न, एग्जामिन बाय टच, एक्सप्लोर करता है। डॉक्टर भी कभी आपको देखता है, अगर मान लीजिए पेन हो रही है शोल्डर में तो वो टच करके देखता है भी कहाँ दर्द हो रही है, तो क्या एक्सप्लोर करना ही तो होता है। दैट इज व्हाट द एक्सप्लोरेशन है। एंड देन एंड ऑल द लिटिल बग्स मीन्स, दीज आर बग्स का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं बग होते हैं आपके, जिसे खटमल भी कहते थे कई बार पहले, हिंदी में आपको भी जानते हैं। तो बग्स मतलब कीड़े मकोड़े की बात कर रहा है। देयर आर ओवर 6,50,000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ एवरी स्पीसीज, एंड दिस साइंटिस्ट इज इंटरेस्टेड इन एवरी वन ऑफ देम। ही इज एन एंटोमोलॉजिस्ट हो जाता है। अगर किसी को याद ना रहे एंटोमोलॉजिस्ट, तो यहाँ पर वो देख सकता है कि ये कहीं ना कहीं एंट जैसा लगता है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये फीलिंग क्या देती है? एंट वाली देती है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी भी, एंट फिर इमीडिएटली समझ आता है ओके यार ये एंटोमोलॉजिस्ट है, मतलब ये इंसेक्ट्स वाला है। यानी जो इंसेक्ट की स्टडी करेगा वो एंटोमोलॉजिस्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड देन टावर ऑफ बेबल। टावर ऑफ बेबल इज व्हाट? टावर ऑफ बेबल इज अ काइंड ऑफ, अगर आपको स्टोरी का आइडिया नहीं है तो मैं बता सकता हूँ कि टावर ऑफ बेबल जो है वो पुरानी मैथोलॉजी में इट इज मेंशन लाइक दिस, कि लोगों ने ये एक टावर बनाना शुरू करा एक पर्टिकुलर एरा के अंदर। उन्होंने कहा कि हम इतना बड़ा टावर बनाएंगे, इतना बड़ा बिल्डिंग बना लेंगे कि हम उसके ऊपर चढ़कर स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। पॉसिबल है, अगर हम मानते हैं स्वर्ग ऊपर है और आकाश की एक हाइट तो होगी ना, तो अगर हम ऐसी बिल्डिंग बना दें जो आकाश तक चली जाए और हम उसमें चढ़ के ऊपर पहुंच जाएं तो भगवान से मिल लेंगे, ऐसा स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। तो लोगों ने सोचा हम ऐसी बिल्डिंग बना दें। दे स्टार्टेड मेकिंग ए बिल्डिंग। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं जी इंद्र भगवान को ऐसे लगने लगा, जो मैथोलॉजी है। ठीक है, ऐसी हर कल्चर में कुछ ना कुछ मैथोलॉजी होती है। तो इस मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको ये लगा कि भगवान जो थे उनको लगा कि यार ये लोग तो ऊपर आ जाएंगे और सारी मिस्ट्री खुल जाएगी कि हम जैसे भी हम मानते हैं कि ये दुनिया में हम मरकर कहाँ जाते हैं, वी डू नॉट नो ना। अगर मान लीजिए अगर हम भगवान तक पहुंच जाए तो हो सकता है वो इतिहास खुल जाए कि हम कहाँ जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो मैथोलॉजी कह रही है कि भगवान को ये लगा कि ये ऊपर तक पहुंच जाएंगे और ये हमारे तक आ जाएंगे तो पूरा रिवील हो जाएगा। सो उन्होंने क्या किया कि जो लोग काम कर रहे थे उनकी लैंग्वेज बदल दी। अर्लियर दे वर स्पीकिंग इन ओनली वन लैंग्वेज, बट गॉड ने
हिज पावर इज रियली एब्सोल्यूट, उसके आगे तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने लोगों की लैंग्वेज बदल दी, यानी कुछ लोग कोई भाषा बोलने लगे, कुछ लोग कोई भाषा बोलने लगे, कोई लोग कुछ भाषा बोलने, और जब भाषाएं बदल गई तो कम्युनिकेशन का तरीका भी बदल गया। तो जो पहले यूनिटी से लोग काम कर रहे थे उस यूनिटी से काम नहीं हो पाया, बिकॉज दे कुड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड देन द होल ऑफ प्रोसेस बट फेल्ड। तो फिर कभी भी टावर ऑफ बेबल नहीं बन पाया। तो आज तक वो मिस्ट्री रही कि हम मरकर कहाँ जाते हैं, कहाँ से आते हैं, दोबारा जन्म होता है या नहीं होता। तो स्टोरी में कह रहा है, यानी वो लैंग्वेजेस अलग अलग हो गई। तो जो लैंग्वेजेस को स्टडी करेगा वो कौन होगा, दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस। लेट्स लर्न दिस। This linguistic scientist explores the subtle, intangible, elusive uses of the unique tool that distinguishes human beings from all other forms of life। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने लिखा लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक जब भी मैं क्लास में पूछता हूं तो मैं कहता हूं कि पॉलीग्लॉट और लिंग्विस्टिक में क्या डिफरेंस है। लोग बोलते हैं जी पॉलीग्लॉट होता है हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, who can speak and write many languages but he is not expert of the language। मान लीजिए कि देयर इज अ मैन ऑफ 50-60 जो वर्ल्ड वाइड 5-5-7 साल अलग अलग कंट्रीज में रहा है। कोई एम्बेसडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कभी अब रशिया में रहे, कभी अब टर्की में रहे, कभी जापान में रहे, कभी चाइना में रहे, कभी अमेरिका में रहे। नाउ यू नो, अगर आप 5 साल कहीं रहोगे तो नेचुरली उसकी लैंग्वेज आपने थोड़ी बहुत तो समझी होगी। यू कैन रीड एंड राइट, ओके, यू कैन लिसन, बट यू आर नॉट एक्सपर्ट। आपको नहीं पता उसका एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब चीजें होती हैं, मे नॉट बी। तो आप क्या हो गए, पॉलीग्लॉट हो गए। बट इफ यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज देन वी कॉल इट इज ए लिंग्विस्टिक होता है, ओके, वो लिंग्विस्ट हो जाता है। सटल, यू नो वेरी वेल, सो डेलिकेट और प्रिसाइज एज टू डिफिकल्ट टू एनालाइज दी और डिस्क्राइब। प्रॉब्ली पहले भी कभी मैंने सटल वर्ड डिस्कस किया हो तो सटल मैंने कहा है जो बहुत इनर्ट होता है, जो होता तो है बट दिखता नहीं। I gave you one example. There was a subtle smile on her face. तो when you complimented, तो she did not react. उसने दिखाया ऐसे ही जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ आपके बोलने से नेचुरली ह्यूमन बीइंग है तो एक चेहरे पर एक हल्का सा फ्लेयर आ जाता है, हल्का सा कलर आ गया होगा, उसको अच्छा लगा होगा। तो यू कुड सी, देन यू सेइंग देयर वाज ए सटल स्माइल ऑन हर फेस। कई बार आपको सटल फीलिंग्स आती हैं कि आपका फ्रेंड मिलने आ रहा है, सटल अचानक से होने लगता है जो आपको नहीं पता कि क्या है, लेकिन आपको फील आती है। सटल इज दैट ओनली। इंटेंजिबल तो आप जानते ही हैं, टेंजिबल आप जानते हैं। इंटेंजिबल इज दैट कांट बी सीन और टच्ड, इज इंटेंजिबल होता है। देन इल्यूसिव, इल्यूसिव क्या है, डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव होता है, एल्यूड करना होता है। कभी आपने याद, हमने शायद डिस्कस करा है कभी वर्ड, एक एल्यूड भी होता है और एक एल्यूड भी होता है। ये एल्यूड तो डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव होता है। ये तो एल्यूड तो कहते हैं, क्या नाम है, एस्केप करना हो जाता है। लक एल्यूडेड हिम, वी कैन से लाइक दैट, बट दिस एल्यूड इज हिंट कह सकते हैं, इनडायरेक्ट रेफरेंस हो जाता है, एल्यूजन होता है। इनडायरेक्ट रेफरेंस वी से, दैट इज एल्यूड होता है। एल्यूजन वी से, रेड रोजेस गेव मी दी एल्यूजन ऑफ वैलेंटाइन डे। याद रखिए सेंटेंस, आपको जल्दी से याद रहेगा। रेड रोजेस गेव मी दी एल्यूजन, ALL, एल्यूजन ऑफ व्हाट, वैलेंटाइन डे। और एल्यूड मैंने बोला, लक एल्यूडेड हिम, एस्केप कर गया। ओके, द क्रिमिनल एल्यूडेड द पुलिस प्लान, उसने एस्केप कर गया, एल्यूड करना होता है। तभी यहां पर मैंने लिखा एल्यूसिव मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव होता है। कभी आपने गौर करा है कि अगर आप एल्यूड की बात कर रहे हैं हम यहां पर, तो एक एल्यूजन हो गया, अभी हमने देखा यहां पर वर्ड एल्यूजन हो गया, फिर हमने वर्ड देखा एल्यूजन हो गया, अब हम यहीं से निकालेंगे। तो कभी आपने कभी देखा है वर्ड एक डेल्यूजन होता है। तो डेल्यूजन क्या होता है, डेल्यूजन होता है, वी कॉल इट इज ए मिसबिलीफ, वी से ये डेल्यूजन है। डेल्यूजन आपको लगता है कि आपको वैसे लगने लग जाता है, आपको ऐसे लगने लगता है कि जैसे कोई सच्ची में ऐसा है, आप ऐसा मान बैठते हैं, वी कॉल इट डेल्यूजन होता है। आई ऑलवेज फील दैट इंडिया इन द लास्ट 75 years has got a delusion that we have grown enough। हमको लगता है कि हमने बहुत तरक्की कर ली है। मुझे ऐसा लगता है कि हम ये मानने लगे हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। बट
जापान नेवर थॉट ऑफ दैट, दे आर स्टिल वर्किंग। तो ये डेल्यूजन है हमारे मन में, मिसबिलीफ हो गया है कि हमने काम करना बंद कर दिया, हम ग्रोथ पे बात नहीं कर रहे। तो दैट्स व्हाट द डेल्यूजन होता है, हमने मिसबिलीफ है। यू आर एट होम सपोज, और बाहर खड़खड़ हो रही थी रात भर, आपको लगा कि शायद बाहर कुछ ऐसा है, कोई क्रिमिनल है या कोई भूत है या कुछ है, तो सुबह आप देखा तो बाहर कुछ और ही था। तो दैट्स व्हाट इज डेल्यूजन हो जाता है, सब मिसबिलीफ बोलते हैं, दैट इज डेल्यूजन हो जाता है। दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश तो कैन, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दो चीजों के बीच में डिफरेंस दिखा सकते हैं, डिस्टिंग्विश होता है। I'll read again. This linguistic scientist explores the subtle, intangible, elusive uses of the unique tool that distinguishes human beings from all the other form of life, to wit, language. Wit का मतलब विजडम है, यानी हम किससे डिफरेंट हैं लोगों से और क्रीचर से, कि हमारे पास विजडम है और हमारे पास लैंग्वेज है। यही तो ह्यूमन का फर्क है। उनकी अपनी लैंग्वेज भी होगी, लेकिन हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास विजडम ज्यादा है, हम ऐसा मानते हैं। दिस पर्सन इज इन शॉर्ट अ स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, एंशिएंट एंड मॉडर्न, प्रिमिटिव एंड कल्चर्ड, चाइनीज, हर्ब्रू, Icelandic, Slavic, Teutonic, and every other kind spoken now or in the past by human beings। जो भी लैंग्वेज बोली जाती हैं ये उन सबको पढ़ता है, पहले वाली भी आज वाली भी। Not excluding that delightful hodgepodge known as Pidgin English होता है। Pidgin मतलब जैसे हम एक बार वर्ड कभी आपने यूज करा, हिंग्लिश बोलते हैं हम लोग, मिक्स ऑफ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वी स्टार्ट्स मेकिंग ए वर्ड काइंड ऑफ पिडगिन इंग्लिश होती है। डिलाइटफुल हॉच पॉच होता है, नीचे देखिए हॉच पॉच लिखा है, कंफ्यूज मिक्सचर, कभी लोग इसे हॉच पॉच भी कहते हैं। ओके, ऐसे भी लिखा जाता है, हॉच पॉच भी लिखा जाता है। आपने हॉच पॉच कर दिया, सारा मिक्स काइंड ऑफ कर दिया। तो ऐसी लैंग्वेज जिसको हमने मिक्स करके हिंदी इंग्लिश का वर्ड बना दिया और फिर उसको यूज करने लगे। कई बार हम यूज करते हैं कि हाँ वो हिंदी में ही उसको इंग्लिश का वर्ड को कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे यूज कर लेते हैं, पिडगिन इंग्लिश हो जाती है। ठीक है। इन विच ए पियानो इज डिस्क्राइब्ड एज बिग बॉक्स, आपने उसको एक नया नाम दे दिया, जैसे टीवी को हमने इडियट बॉक्स कहना शुरू कर दिया। तो पियानो इज डिस्क्राइब्ड एज बिग बॉक्स, यू हिट इन टीथ ही क्राई, ऐसा बोलते हैं, यू हिट इन टीथ ही क्राई, ऐसा आपने समझ लिया, अगर दिमाग में एक नोशन बिठा लिया है। It is not language, but it is easy to understand. And in which Hamlet's famous quandary, to be or not to be, that is the question. अगर आपने हैमलेट पढ़ा है तो उसमें वो राइटर का, शेक्सपियर का बड़ा फेमस कोट है, टू बी और नॉट टू बी। अब पूरी बात तो नहीं कहता, लेकिन हाँ समझ आ जाता है। इज ट्रांसलेटेड इनटू, उसको हमने कहना शुरू कर दिया, टू बी और नॉट टू बी को कैन डू, नो कैन डू, हाउ फैशन, मतलब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, टू बी नॉट टू बी को हमने कहना शुरू कर दिया कैन डू और नो कैन डू। मतलब हाउ फैशन, मतलब व्हाट फैशन या हाउ फैशनेबल, राइटर इज ट्राइंग टू से। ये नहीं, ये चीजें अचानक से बदलती रहती हैं, लैंग्वेज चेंज होती रहती है। दैट द राइटर इज ट्राइंग टू से, वी कॉल दिस फेलो इज फिलोलॉजिस्ट हो जाता है। अगर आपको याद है फिलोलॉजिस्ट, अगर हमने देखें तो हमने एक वर्ड किया था फिल और लॉजी और प्लस इस्ट, हमने बोलता फिल लव होता है अगर आपको याद है, और लॉजी मतलब लैंग्वेज है, और यहां पर इस तो एक्सपर्ट हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो वैसे तो ये निकलता है कि लैंग्वेज का एक्सपर्ट है जिसको लव ऑफ लैंग्वेज है, बट वी कंसीडर लाइक दिस, नॉट लाइक दिस कि लव ऑफ लैंग्वेज, वी से कि द वन हु इज द लर्नर ऑफ लैंग्वेज, जो लैंग्वेजेस को स्टडी करता है उसको हम मानते हैं कि वो फिलोलॉजिस्ट हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो पिडगिन इज समथिंग मिक्स लैंग्वेज होती है। होप यू क्लियरली नाउ इट इज क्लियर टू यू कि फिलोलॉजिस्ट कौन है जो लैंग्वेज की स्टडी करेगा, और पॉलीग्लॉट कौन है जो एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल सकता है, और लिंग्विस्टिक कौन है जो एक लैंग्वेज का एक्सपर्ट होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू एट लेंथ। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू रियली मीन, व्हाट डू यू रियली मीन मतलब उस वर्ड का मीनिंग क्या है। दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट, अब एक तो लैंग्वेज को पढ़ने वाला है, अब लैंग्वेज को पढ़ने वाला उस वर्ड को भी स्टडी करेगा। तो दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर्स द सटल, intangible, elusive relationship between language and thinking, between meaning and words, and is interested in determining the psychological causes and effect of what people say and write. This person is known as semantist हो जाता है। भी आप एक वर्ड को यूज करते हैं, यू माइट हैव सीन कई ऐसे वर्ड होते हैं जो आप कहते हो यार ये मीनिंग तो हो ही नहीं सकता, डिक्शनरी में देखते हो तो कोई और मीनिंग दिखाता है, लेकिन राइटर ने उसको किसी और तरीके से यूज किया होता है। मीन्स व्हाट, व्हेन द वर्ड वाज derived,
जब वो वर्ड हमने बनाया था तब तो उसका मीनिंग कुछ और था, बट ग्रेजुअली इट इज बीइंग यूज्ड इन अ डिफरेंट फैशन. सी दिस लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट एक्सप्लोर्स दी what subtle, intangible, elusive relationship between language and thinking. कई बार कोई स्टेटमेंट अपने फ्रेंड को लिखकर भेजते हो, वो कहता तुमने मुझे ऐसे बोला था, आपने कहा नहीं यार, आई वांटेड टू से दिस, इट कैन कन्वे दिस एज वेल. तो व्हाट आई इंप्लाई एंड व्हाट यू इन्फर कैन बी डिफरेंट, बिकॉज वो वर्ड का कहीं ना कहीं मीनिंग बहुत ही सटल होता है. ऐसे जो लोग होते हैं जो वर्ड मीनिंग पर जाते हैं, वो बिटवीन मीनिंग एंड वर्ड्स एंड इज इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग द साइकोलॉजिकल कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ व्हाट पीपल से एंड राइट इज नोन एज सिमेंटिस्ट हो जाता है. ओके, याद रखिए, यानी ये वर्ड मीनिंग पर काम करता है. एंड हु आर योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, ये वो है जो आपके आसपास के एरिया पर डील करता है, सोसाइटी पर डील करता है. मींस this scientist is a student of the ways in which people live together, their family and community structures and customs, their housing, their social relationship, their form of government and their layers of caste and class. इस तरफ इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज सोशोलॉजिस्ट हो जाता है. ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड सोशोलॉजिस्ट. एंड देन व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमने बोला था कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आई वाज सेइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोसाइटी की स्टडी करता है कि भाई हम कौन कौन सी सोसाइटी से इस सोसाइटी तक पहुंचे. लेकिन ये सोशलिस्ट क्या है, सोशल सिस्टम की, हम आपस में किस तरीके से रहते हैं, हमारी सोसाइटी के क्या ट्रेंड हैं, क्या सोशल रिलेशनशिप है, किस तरह की गवर्नमेंट होती है, ये नहीं हमारे सिस्टम को डील करता है कि हम आपस में किस तरीके से एक दूसरे के साथ डील करते हैं, वो सोशोलॉजिस्ट होता है. और जो सोसाइटी की स्टडी करता है वो फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाता है. सॉरी, यस, वो फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा. Anthropologist, sorry, that is known as anthropologist हो जाएगा. So one is anthropologist, one is sociologist. Hope you have understood this. So that's all we have in this session 11, and kindly revise it and complete the exercise after this. Definitely for sure you will learn many words in this session as well. Thank you very much for watching. Let's meet in the next class. Thank you very much. God bless you.